The verbal component constitutes to only 7% of the communication skill, whereas non-verbal constitutes a massive 93% of our communication skills. Hello everyone, my name is Shivam Jha and you are watching Boldness Unlocked. So welcome back everyone on the second part of the video, how to improve our communication skills. और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. देयर आई हैव डिस्कस दिस वेरी टॉपिक ऑन अ वेरी फंडामेंटल बेसिस. तो लिंक यहाँ कहीं ऊपर में आ रहा होगा, तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वन फर्स्ट. और जिन्होंने भी वो वीडियो देख लिया है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑन हाउ टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स. टिल देन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन, ताकि अगली बार जब मैं अपने बात और विचार के साथ आऊं तो आप तक सीधे पहुंच सकूं. बिफोर वी गेट अहेड विद दिस एपिसोड, लेट्स रिकैप few of the things from the last video. There we have discussed that listening to someone is very crucial. अपनी बातों को किसी के सामने रखने से पहले हमें उन्हें सुनना बहुत जरूरी है. Second thing, English is just a language, just a medium to share our thoughts. This is not the secret recipe to improve our communication skills. And third, communication is all about the ability to share our thoughts. अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा पाने की क्षमता ही कम्युनिकेशन है. ये सारी बातें तो पिछले वीडियोस की हो गई, तो इस वीडियो में हमारे पास क्या कुछ है नया सीखने के लिए? तो बहुत कुछ है. See, whenever we communicate with others, there are a lot of aspects to be covered. जब मैं किसी से बातें कर रहा हूँ तो सिर्फ मेरे शब्दों के मायने नहीं है. For example, if I'm talking to you, it's not that only words will be counted. The volume in which I am speaking, मैं कितने जोर और कितने धीरे से आपसे बातें कर रहा हूँ. The proximity between my words, मैं कितनी जल्दी जल्दी अपनी बातों को कह रहा हूँ या फिर नहीं, मैं अपनी बातों को ठहराव देके आपसे बातें कर रहा हूँ. The body language, the outer appearance, these all things constitute to a proper communication skill. लेकिन इन सारे एस्पेक्ट्स पे बात करना एक वीडियो में थोड़ा इम्पॉसिबल है और शायद वीडियो की लेंथ भी बहुत लंबी हो जाए. However, we will focus on some important aspects of the communication skills. Whenever we humans communicate, the communication takes place at two levels, or we can say that the communication has two components. Number one, verbal component, and the other is non-verbal component. And Professor Mehrabian, after concluding a particular research, has concluded that the verbal component constitutes to only 7% of the communication skill, whereas non-verbal constitutes a massive 93% of our communication skills. And that 93% of the non-verbal communication is further divided into two parts. 38% is for the vocal and 55% is for the body language. यानी कि एक पूरे कम्युनिकेशन के दौरान हमने जो शब्द इस्तेमाल किए वो मात्र 7% मायने रखता है, और उस शब्द का हम लोगों ने कैसे इस्तेमाल किया वो 93% तक मायने रखता है. तो शायद इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट वेल, एक अच्छी इंग्लिश बोल पाना और एक अच्छा वोकैबुलरी होना इज द सेकेंडरी थिंग. देयर इज समथिंग विच इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट. हाउएवर, इन दिस वीडियो वी वुड स्टिक विद द वर्बल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन. Non-verbal being the biggest part, we would be covering that part in the second part of this video. So what is verbal communication? Verbal communication is all about the language, the words which we use in order to communicate ourselves either in written form or in the oral form. जो भी शब्द, जो भी लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं वो verbal communication के अंदर आता है. And this verbal communication is very crucial in the corporate world. और ना केवल बिजनेस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, दिस इज वेरी क्रूशियल इन आवर रियल लाइफ एज वेल. सी, मेरा मानना है कि वेन एवर वी कम्युनिकेट टू एनीवन, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो द ऑडियंस. ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने ऑडियंस के अनुसार खुद को एडजस्ट कर सके. डज नॉट मैटर कि हमारे पास कितना नॉलेज है, हमारी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है, अगर उसे यूज करना हमें नहीं आया तो शायद सब कुछ बेकार है. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं पे गया प्रेजेंटेशन देने के लिए, और जो मेरी ऑडियंस है उनके लिए वो उन बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन मैं वहाँ जाता हूँ और शो ऑफ करता हूँ और भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, तो
शायद मेरी ऑडियंस के यार कैसा मूर्ख इंसान को भेज दिया है, क्या बकवास कर रहा है। लेकिन ऑन कॉन्ट्ररी, इफ आई यूज दोज वर्ड्स विच आर इजी टू अंडरस्टैंड, और मैं अपनी बातों को अगर उस ऑडियंस को समझा सकूं, तो शायद आई वुड प्रूव माई सेल्फ टू बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। नाउ लेट्स कंसिडर द अनदर सिनेरियो। इस बार फिर से मुझे प्रेजेंटेशन देना है, लेकिन इस बार मेरी ऑडियंस में इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, इंजीनियर्स बैठे हैं, एजुकेटर्स बैठे हैं। तो शायद अगर मैं वहाँ आसान शब्दों का इस्तेमाल करूँ तो मुझे लायक ना समझा जाए। देयर आई विल हैव टू शो माई स्किल्स, आई विल हैव टू शो माई पोटेंशियल टू बी कंसिडर्ड एट पार। कैन यू सी द डिफरेंस? ऊपर के दोनों सिनेरियो को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक XYZ कंपनी है और मैं उसके एक प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दे रहा था, और मेरी पहली सेट ऑफ ऑडियंस एक फार्मर्स की थी, किसानों की थी, और दूसरी सेट ऑफ ऑडियंस इंटेलेक्चुअल्स, इंजीनियर्स और एजुकेटर्स और टेक्नीशियंस की थी। तो जब मैं उस प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन पहले ग्रुप को दे रहा हूँगा, तो शायद मेरे लिए इतना बोलना काफ़ी होगा कि इस प्रोडक्ट को अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी खेती अच्छी होगी, विच विल अल्टीमेटली लेट यू टू गेट मोर इनकम एंड विच विल अल्टीमेटली पुट यू इन ए पोजिशन टू पे ऑफ योर लोन्स। लेकिन शायद केवल इतना इंफॉर्मेशन दूसरे सेट ऑफ ऑडियंस के लिए काफ़ी नहीं होगा, बिकॉज देयर आर टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स सिटिंग ओवर देयर, दे विल डिमांड मोर डिटेल्स। तो शायद जब मैं वहाँ प्रेजेंटेशन दे रहा हूँगा तो आई वुड बी डिस्क्राइबिंग दी केमिकल कंपोजिशन ऑफ दैट प्रोडक्ट, कौन से केमिकल्स कितने मात्रा में यूज़ हुए हैं, हाउ दिस प्रोडक्ट कैन बी ईजिली मेड अवेलेबल फॉर ऑल द फार्मर्स, एंड वाई दिस प्रोडक्ट इज बेटर than the already existing product in the market. Can you feel the difference? हमें शब्दों का चुनाव अपने ऑडियंस को देख के करना है, लेकिन याद रहे, it is still only the 7% of the whole communication. The remaining 93% of the communication, that is the non-verbal component, we would be discussing about them in the upcoming videos. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, and share this video if you find this worthy. And consider subscribing to our channel Boldness Unlocked, which would help you to get more of the content like these. और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली बार जब मैं अपने बात और विचार के साथ आऊँ तो आप तक सीधे पहुँच सकूँ। And please do not forget to follow Boldness Unlocked on Instagram, because वहाँ पे भी मैं डेली पोस्ट और वीडियोस डालता रहता हूँ। See you all in the next video with much more deep, exciting and profound informations. Thanks for watching. Till then, take care. Bye-bye.